Okay, so I welcome all of you to this session now. So this is a very rapid session. This will be generally for the four short subjects, that is dermatology, anesthesia, radiology, and psychiatry. These four short subjects. Look, these four subjects generally comprises like 4 or 5 questions from each subject. But if we calculate the whole bulk, then we'll get it like 4 or 5 questions from the each subject means 20 to 25 questions from the these whole 5 subjects, 4 और 5 सब्जेक्ट्स। तो अगर ये 4 सब्जेक्ट्स में से अगर हमको बल्क में क्वेश्चन आ रहा है, देन ओवरऑल अगर मैं देखूँ इसको, तो इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मार्क्स। सो इफ इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मार्क्स, है ना, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट बूस्टिंग आवर जनरली मार्क्स, एंड दिस इज टू मच इजी पार्ट्स ऑल्सो, जो कि हम एक दिन में कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन द डर्मेटोलॉजी, एंड दैट इज नथिंग बट a 40-year-old male. So today we'll start with dermatology, and next in the next session, so we'll be doing like another also. So in this whole week I'll be covering this whole SARP, skin anesthesia, radio, and psychiatry. All of those will be covered. So let's see. A 40-year-old male presents with painful genital ulcers along with painful buboes. He had a history of intercourse with multiple sexual partners. What is the diagnosis? So now everything is almost clear here. So what? A 40-year-old male is there. Painful. The main thing that you must know here is that is painful genital ulcers along with painful buboes. Buboes is nothing but the lymphadenopathy. ठीक है, lymphadenopathy. He had a history of intercourse with multiple sexual partner, means it is going toward STDs, ठीक है, sexually transmitted diseases. So let us see. In the options we have Synchroid, LGB, secondary syphilis, and herpes genitalis. Okay, so how will you reach this question? So look, the first thing that is here is painful buboes. So synchroid, if we talk about synchroid is also called as soft cankers or cankers because they are non-indurated ulcers, plus they are caused by hemophilus ducrei, ठीक है, plus they are caused by hemophilus ducrei. Incubation is generally 3 to 7 days, and the most common presentations of this synchroid are multiple ulcers, painful ulcer. You must remember this point, the painful ulcer. This is taking us to our diagnosis. Next is non-indurated ulcers, ragged undermine edges, gray slough, and unilateral bubo, which is painful. Okay, so you got it, painful buboes and painful genital ulcer. So you got the answer, that is nothing but synchroid. अब दूसरे क्यों नहीं होते? Let's see. So if we talk about LGB is generally caused by chlamydia. Incubation period is of about 10 to 30 days, and ulcer is painless, but bubo might be painful. But the main thing they are giving here is ulcer is painless, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास है ulcer is painful, so ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, secondary syphilis. So in the case of secondary syphilis, these will be repeated so many times. Asymptomatic, it will be asymptomatic condition, bilateral symmetrical pleomorphic maculopapular rash on palms and soles, non-tender lymphadenopathy. You are getting it. Next you see other findings. Other findings are condyloma lata, moth-eaten alopecia, arthritis, and proteinuria that are generally found with secondary syphilis. Next, one more thing we have, that is herpes genitalis. So this herpes genitalis generally it is caused by HSV2 more than HSV1. So HSV2 is the major cause for this. ठीक है, incubation period कितना होता है? 2 to 7 days. Multiple painful vesicles and erosion should be bilateral, erosion should be there, but buboes are not present in this herpes genitalis also. So you got it about all these four: synchroid, LGB, secondary syphilis, and herpes genitalis. If you remember the Preeti ma'am's lecture, she has told like synchroid, it is caused by hemophilus ducrei, and it will make you ducrei, it will make you cry, ducrei, that is it will make you cry, so it is very painful. So from that also you can remember कि इसका क्या हो जाएगा, synchroid हो जाएगा, very painful ulcer. अगर ट्रीटमेंट ऑफ synchroid की मैं बात करूँ, why not just do the medicine part also here? So the treatment of synchroid is generally, the drug of choice will be generally azithromycin 1 gram oral OD or ceftriaxone 250 mg IM as a single dose. Next, partners who have had sexual contact with the patient within the 10 days before the onset of symptoms should be treated with the recommended regime. So generally the partners who have had the sex also must be treated, ठीक है। So ये हो गया हमारा first question. Next, let us move to next question. A 5-year-old child had sore throat for which he was given co-amoxiclav, started developing skin lesions as in the image below. What is the diagnosis? So I had just written it for the reference. If you want to go to the rapid revision notes, you can just go and see it on 53 नंबर पेज, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, प्रेप का जो रैपिड रिवीजन वाला नोट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके रिलेटेड। सो क्या है, 5 year old बच्चा है, छोटा, एंड
ही हैज अ सोर थ्रोट, इन्फेक्शन ऑफ जनरली सोर थ्रोट, सो अ प्रीवियस इन्फेक्शन। और यहाँ पे देखो फिगर जो हमको दे रहा है, दिस फिगर इज सजेस्टिंग व्हाट, अ रेन ड्रॉप अपीयरेंस, दिस इज सजेस्टिंग अस रेन ड्रॉप अपीयरेंस। आई विल टेल यू वन थिंग, इन डर्मेटोलॉजी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी जनरली फ्रॉम द इमेज बेस्ड, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड मोर। सो जनरली रेन ड्रॉप अपीयरेंस में lesions are less scaly, smaller and present on trunk, appears as crops and follows a streptococcal throat infection. So the typical finding where there is a streptococcal throat infection. So if I talk, the answer will be generally here. This is raindrop appearance is generally seen in gutted psoriasis, ठीक है, this is seen in gutted psoriasis, और gutted psoriasis is mainly found in children. History of beta hemolytic streptococcus और streptococcal infection. अगर मैं बात करूँ pustular psoriasis की, so this pustular psoriasis generally there will be lakes of pus, ये major buzzword will be there, so you must remember this buzzword, that is lakes of pus. This is seen in pustular psoriasis. Inverse psoriasis की बात मैं करूँ, generally it will be seen in axilla and groin, and this pustular psoriasis will be mainly seen on palms and soles. नैपकिन सोरियासिस की मैं बात करूँ तो जनरली देयर विल बी, नैपकिन नाम से हमको क्या पता चल रहा है, इट विल बी जनरली इन द एरिया वेयर द नैपकिन इज वर्न, दैट इज नथिंग बट डाइपर एरिया, 2 to 8 मंथ इन्फेंट की जनरली हिस्ट्री दी होगी। सो दिस इज अबाउट जनरली द दिस क्वेश्चन शॉर्ट थ्रोट वाला। नेक्स्ट देखो, अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट टू द ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर एंड रिकरेंट लीजन्स ऑन लिप्स एज शोन बिलो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन ऑन द जैंक स्मीयर। So this lesion, if you see, this lesion is nothing but herpes labialis, ठीक है, this is herpes labialis, and generally in the herpes labialis you will see multinucleated giant cells on the jank smear. अगर मैं हेंडरसन पीटरसन बॉडीज की बात करूँ, एक्चुअली दिस थिंग्स वी हैव डन इन पैथो प्लस माइक्रो, दोनों पे हमने करी है, ये दोनों, ये जितनी भी है हेंडरसन पेटरसन बॉडीज कहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि जितनी भी ये पैथोलॉजिकल स्लाइड्स एंड द माइक्रोबायोलॉजिकल स्लाइड्स आर ऑल आई हैव टॉक्ड इन पैथोलॉजी सेशन, ठीक है, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सेशन, दो वीडियोज आर ऑलरेडी ऑन द चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देयर, ठीक है, बहुत हाई यील्ड है वो सब वीडियोज, एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी, हेंडरसन पीटरसन बॉडी जनरली इट इज सीन इन मोलस्कम कंटेजियोसम। इफ वी टॉक अबाउट द acanthocyte is generally seen in O beta lipoproteinemia, and all eye appearance, all of you know that is nothing but cytomegalovirus. अगर मैं इसकी जनरली ये क्या है, हर्पस लेवियालिस, अगर हर्पस लेवियालिस की जनरली इफ आई टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट विल बी जनरली टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स, एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स फॉर दिस इज फीवर, स्ट्रेस, सर्जरी एंड menstruation, ठीक है। सो दिस इज जनरली अबाउट द हर्पस लेवियालिस। लेट्स मूव अहेड। अ 30-year-old pregnant female started developing brownish pigmentation over the face as shown below, what is the diagnosis? So this is generally most recent question that has come from 2024 जुलाई पैटर्न, ठीक है, जुलाई से बहुत रिसेंट वाला क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन। सो इफ आई टॉक अबाउट हियर, यू सी दिस ऑल दिस थिंग्स, these are nothing but reticulated appearance, ठीक है, reticulated appearance, that is patchy within the macule, मैक्यूल के अंदर में पैची अपीयरेंस इज देयर। इट इज मोस्ट कॉमन इन मलार एमिनेंसेज, अपर लिप, फोरहेड एंड मैंडिबल। So this is nothing but generally melasma. This is melasma. 30-year-old pregnant female started developing brownish pigmentation over the face as shown below. So this is nothing but melasma. The risk factors will be generally sunlight. You can just pay attention to these buzzwords. Look, risk factor will be sunlight, pregnancy. So what they are giving here? Pregnancy. ठीक है, pregnancy and the use of OCPs also. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ तो जनरली melanocytes in the melasma increase production of melanin due to risk factors, and hyperpigmentation will be the result of all these things, that will be, there will be increase in the melanocytes, ठीक है, melanocytes। आगे चलो, आगे चल देखते हैं। ब्यूबो इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, देयर ओनली वी हैव डन एवरीथिंग रिगार्डेड द ब्यूबोज, ठीक है। सो ब्यूबोज में जनरली क्या है, एलजीवी एंड सैंक्रोइड, टू प्लेसेस देयर विल बी ब्यूबोज, ठीक है। सो ना सिफिलिस में होते हैं ब्यूबोज, ना हार्पिस में, और दोनों वेनियासिस में जनरली देयर विल बी स्यूडो ब्यूबोज, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, स्यूडो ब्यूबोज विल बी सीन इन दोनों वेनोसिस। Next, what skin condition is characterized by the presence of a coral red fluorescence under a Wood's lamp examination as shown in the image? This we have done in generally our microbiology session also, but let's do it in the derma again. Main क्योंकि ये चीजें तो derma में आके ही co-integrate होती हैं. So let's see. This is Wood light examination. Wood's light examination. The coral red fluorescence due to presence of porphyrin. ठीक है. This wood light मतलब wood से light नहीं आ रहा. Generally this wood is the name of the scientist. ठीक है. This is most commonly used generally routine investigation mostly performed in the derma department. अगर आप लोग वहाँ पे गए होंगे तो you must be knowing about this. So generally coral red fluorescence due to presence of porphyrin, that is nothing but erythrasma. ठीक है, so this is nothing but your erythrasma. Look, it is caused by diphtheroid corynebacterium minuti osimum, ठीक है, minutissimum, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज जनरली रॉड शेप, दिस इफ आई टॉक अबाउट दिस diphtheroid corynebacterium minutissimum,
So this is nothing but a rod-shaped gram-positive organism. It may also cause cutaneous granuloma or bacteremia in immunocompromised patients. ठीक है, आगे चलो देखते हैं. A 45-year-old patient presents with an itchy, flat-topped, polygonal, violaceous papules on the wrists and flexor surfaces of the forearms. As shown in the image, the lesions have a characteristic shiny surface and are arranged in a linear pattern. The patient denies any रिसेंट मेडिकेशन चेंजेस, मीन्स दिस इज नॉट ड्यू टू ड्रग इरप्शन. ठीक है, ड्रग के एडवर्स ड्रग इरप्शन में से नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन. सो दिस इज जनरली मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज रिस्ट एंड फ्लेक्सार पे जनरली वायोलेसियस पैप्यूल्स आर देयर, है ना. Next, the lesions have characteristic shiny surface. There are characteristic shiny surface, linear pattern. They are in the linear pattern. So आप लोगों को जनरली यहाँ पे अगर आप ये जनरली इफ यू सी दिस शाइनी सरफेस तो सोरियासिस की तरफ जाने लगते हो, बट नो, सोरियासिस में सिल्वरी स्केल्स टाइप का कुछ दिया हुआ है. ठीक है, सिल्वरी टाइप का अपीयरेंस कुछ दिया हुआ, दैट इज सोरियासिस. सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जनरली दिस, ये आप देख सकते हो ये फ्लेक्सर सर्फेसेज पे जनरली ये है. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइकन प्लानस. ठीक है, दिस इज लाइकन प्लानस. इट डजंट हैव अ प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. ठीक है, लाइकन प्लानस के लिए देयर इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. टॉपिकल corticosteroids and intralesional steroids can help. Antifungal has no role. The antifungal has no role to play in the case of lichen planus. देखो lichen planus में generally 6 P's of lichen planus you must remember. Lichen planus P, and again there will be 6 P as the presentation, that is pruritic, purple, polygonal, planar, papule and plaque. So these are generally the 6 P's of generally the lichen planus. So here we will use topical steroid. The systemic steroids generally it is used in widespread conditions, but relapse occurs after the use of generally systemic steroids. So generally topical steroids will be preferred here. Dapsone ki generally it can be used, but it is not used as the first line drug in case of generally lichen planus. ठीक है, अगर मैं और बात करूँ lichen planus के लिए, so look at the pathogenesis of the lichen planus. So it is an autoimmune disorder, T cell mediated response, antigen is not known, caused by known drugs and dental amalgams. It is caused generally by the use of known drugs and dental amalgams, but here they are not giving any drug history. ठीक है, मेडिकेशन चेंजेस, पेशेंट डिनाइज एनी रिसेंट मेडिकल चेंजेस. ठीक है, आगे देखो क्लिनिकल फीचर. देयर विल बी इचिंग एंड इट इन्वॉल्व्स द फ्लेक्सर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. इन्वॉल्व्स स्किन, म्यूकोसा एंड नेल्स. कॉर्नर्स फिनोमिनन विल बी पॉजिटिव. वीक हेम्स्ट्रिया. अगेन रिमेंबर टू थिंग्स. I'll tell you as we progress into the video. So there will be like Kovner's phenomenon will be positive here, and Wickenhams-Stria will also be present. So Kovner's phenomenon क्या है मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, so let us just for now just see this. Wickenhams-Stria is nothing but reticular whitish line that are seen on a plaque of lichen planus due to hypergranulosis. ठीक है, you must remember at least that Wickenhams-Stria is generally due to hypergranulosis. At least this much you must remember. आगे चलो देखते हैं. Which of the following can be utilized in treatment of the genital warts in pregnancy? Okay, genital warts. So सबसे पहले तो genital warts के बारे में समझते हैं. What are genital warts? So genital warts are generally certain warts जो जैसे कि plantar warts होते हैं, है ना. All those warts जो एक थिक सा एक क्या होता है जनरली अपीयरेंस हो जाता है स्किन पे, दैट इज वाट्स. सो दिस वाट्स के लिए ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं. नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विल बी देयर, डिस्ट्रक्टिव एंड पेनफुल. नॉन स्पेसिफिक, डिस्ट्रक्टिव एंड पेनफुल टेक्निक्स आर देयर. गोल इज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ केराटिनोसाइट्स इन्फेक्टेड विथ एचपीवी. ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस वाट्स, एंड इट विल जनरली cause the problem in the keratinocytes. As a result, there will be the presentation as the warts. So for this you must go for the destruction of the keratinocytes which is infected with HPV, and for that cryotherapy with liquid nitrogen is performed in all types of wart. Either it is palmoplantar warts. I myself had plantar warts. ठीक है, मेरे को खुद के पैर में एक बार जनरली प्लांटर वाट्स हो गए थे, एंड फॉर दैट आई वेंट टू माई हॉस्पिटल. मैं अपने जो अपना जो टीचिंग हॉस्पिटल हमारा था मेडिकल कॉलेज के, आई वेंट टू द टीचर देयर ओनली. Actually, before that, when I was at my home country, I went to the hospital there. A small hospital was there, and they thought that it is they could not diagnose the warts. They simply thought that it is some kind of the wound, and they asked me for the surgical incision there. वो बड़ा सा हो गया था, so they asked me for the surgical incision, but they could not diagnose, and I did not agree for that surgical generally incision there. So when I came back to the college, है ना, कॉलेज में आने के बाद I went to my teacher and I asked her कि generally what should I do, and she
डायग्नोज्ड इट इन हर फर्स्ट मीटिंग। जब मैंने पहले बार पैर निकाल के दिखाया, शी सेड दिस इज नथिंग बट दिस इज HPV, दिस इज वाट्स, दिस इज प्लांटर वाट्स, एंड फॉर दैट शी सजेस्टेड मी क्रायोथेरापी विद द लिक्विड नाइट्रोजन। सो आई रिमेंबर दिस केस, ठीक है। क्रायोथेरापी शी सजेस्टेड एंड शी डिड इट फॉर लाइक 3 times, आई थिंक शी डिड इट, ठीक है। She did cryotherapy for 3 times, and she also suggested me that do you smoke? I said no, I don't smoke. So she said if you smoke you can use the cigarette. If cigarette is there, you can just use it just near your wound. Don't touch the warts but just near. If the wart is here, like you can use the cigarette which you are smoking, जो जला हुआ सिगरेट होता है उसको यहाँ पे नजदीक लेके जाना। हीट से भी क्या होता है, जनरली इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो जनरली द मेन थिंग देयर इज टू डिस्ट्रॉय द keratinocytes which are generally infected with generally HPV. So generally this cryotherapy with liquid nitrogen can be done for all warts. Salicylic acid plus occlusion with tape, it is common plantar warts के लिए generally use होते हैं। I used this occlusion tape also, but it was not very helpful for me. This cantharidin generally it is used for children, है ना। Tretinoin 0.1% cream, it is used for flat warts. Podophylline 25% for genital warts, and podophylox, that is genital warts, BID into 3 days and weekly per week for 4 weeks, ठीक है। BID 3 days per week and for 4 weeks, ठीक है। 3 days, एक वीक में 3 days यूज करना है, एंड द ट्रीटमेंट विल बी फॉर 4 weeks, ठीक है। इमिक्विमोड जनरली इट विल बी यूज्ड फॉर जेनिटल वार्ड्स, दैट इज वंस डेली इन 3 days per week, ठीक है। एक बार लेना है 3 दिन एक वीक में, एंड जनरली दैट विल बी द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर 16 weeks. सो दीज आर जनरली ऑल द ट्रीटमेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द वार्ड्स, ठीक है। सो आगे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रायोथेरापी मोस्ट कॉमन इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज फॉर जनरली द वाट्स ऑफ एनी टाइप, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ क्रायोथेरापी की जाती है। इट इज पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल, आई हैव जनरली सेंस्ड दैट पेन, ठीक है। सो इट इज पेनफुल। आगे देखो, 50-year-old मैन केम विद द लीजन एज शोन इन द इमेज, ऑन एग्जामिनेशन पेनफुल एंड swollen fingers noted along with inflamed wrist joint, ठीक है। swollen fingers noted along with inflamed wrist joint, what is the most likely diagnosis? 50-year-old man came with the lesions as shown in the image, ये image में देखो जनरली, है ना। these are the lesions, painful and swollen fingers noted along with inflamed wrist joint, what is the most likely diagnosis? So look, this is nothing but sausage like swelling, this is sausage like, ये finger जो है वो sausage की तरह दिख रहा है। so this is sausage like swellings, generally it is dactylitis, है ना, a hallmark of generally psoriatic arthritis, this is a hallmark of psoriatic arthritis in derma, no। if you diagnose the picture, if you look at the picture, you will get everything there, ठीक है। picture से diagnosis हो जाता है। so if we talk about the psoriatic arthritis, so let us see what all psoriatic arthritis is about, ठीक। so associated with psoriasis and can cause joint pain, swelling, inflammation, particularly in the fingers. Sausage like fingers, that is the hallmark, so यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, sausage like fingers is the hallmark of psoriatic arthritis. So if you just look at the image and just you can imagine in your mind that this is nothing but the sausage like fingers, so you will go to the diagnosis, that is psoriatic arthritis. Other deformities will be marginal erosions with adjacent bony proliferation, small joint ankylosis and osteolysis of phalangeal and metacarpal bones, telescoping of digitis, periostitis, है ना, telescoping of digitis, है ना, digits, and proliferative newborn axial changes like symmetric sacroiliitis will also be present here. So mostly आपको यही question पूछेंगे, they will ask this. So this is nothing but psoriatic arthritis. Okay, can you tell me what is the treatment of choice for gout? यहाँ पे pseudo gout करके दिया हुआ है, but I am asking you about the gout, ठीक है। आपको अगर आता है बताओ नीचे। A patient presented with 2 types of treatment होता है वहाँ पे basically, so you must tell me about that. A patient presented with shown lesions to a physician and he is treated with topical steroids. What is the condition called? What is the, देखो ये वाला, ये देखो, so ये देखने के साथ ही हमको क्या पता चल रहा है, दिस इज नथिंग बट सम टीनिया इन्फेक्शन, ठीक है, सम टीनिया इन्फेक्शन। और ये देखो ये रिंग लाइक लीजन्स है यहाँ पे, सो दिस इज टीनिया जनरली। और अगर टीनिया कॉर्पोरिस है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सो दिस इज जनरली इन बॉडी, ये देखो फेस पे आ रहा है। टीनिया क्रूरिस जनरली ग्रोइन के एरिया में होगा, सो यहाँ पे नॉन ऑफ द होगा, और एक टीनिया इनकॉग्निटो, सो ऑफ कोर्स आवर आंसर विल बी टीनिया इनकॉग्निटो। आगे देखो, आइडेंटिफाई द कंडीशन, दिस यू कैन सी हियर,
raised cauliflower like growth is here. Raised cauliflower growth is like growth is here generally in the anal region or the genital region, है ना. अब दूसरा फिगर आप देखो तो वही genital wart दिखा रहा है यहाँ पे. So this is generally nothing but HPV 6 and 11 generally it is mostly caused by, है ना. और ये genital warts generally this is nothing but condyloma acuminata. ठीक है, this is condyloma acuminata also called as genital warts. It is caused by HPV 6 and 11. ठीक है, कॉन्डाइलोमा लेटा क्या होता है? इट इज जनरली अ फ्लैट लीजन इन सेकेंडरी सिफिलिस. अभी ऊपर पढ़ा था हमने. Condyloma lata and condyloma acuminata, you must be very clear for these two terms. Condyloma acuminata generally HPV 6 और 11 के इन्फेक्शन से होता है. there will be cauliflower like growths वगैरह, है ना, and genital warts will be there. And condyloma lata is nothing but generally a flat lesion in the secondary syphilis caused by trypanosoma pallidum. ठीक है, trypanosoma pallidum. नेक्स्ट देखो herpes genitalis, it is painful vesicles that can ulcerate. ऊपर भी हमने पढ़ा था. hemorrhoids is generally swollen blood vessels around the rectum. और ये कोई हमको swollen blood vessel around the rectum दिख नहीं रहा. This is a cauliflower like wart like growth. Identify the condition. Here if you see this condition, ये वाला condition देखो. ठीक है, ये वाला condition अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एक पैच के जैसा दिख रहा है ना, एक पैच के जैसा दिख रहा. सो दिस पैच इज जनरली क्या होता है यहाँ पे देखो इसको समझने के तरीके इन द जनरली डर्मा. सो दिस इज नथिंग बट ये देखो borders are generally uneven. So there is uneven border. It is asymmetric. It is irregularly pigmented. ठीक है, इसका रेगुलर पिगमेंट नहीं है. इट इज irregularly pigmented. You can see here. ठीक है, you can see here. It is irregularly pigmented. इट इज नथिंग बट अगर इतना ये तीन चीज आ गया और आपने अगर रैपिड रिवीजन की नोट पढ़ी है तो जनरली यू विल बी गुड टू गो विथ मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द मेलानोसाइट. और मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अराइजेज फ्रॉम द मेलानोसाइट इज नथिंग बट मेलानोमा. अगर बेसल सेल कार्सिनोमा, why it is not basal cell carcinoma? Because basal cell carcinoma is generally raised and it is has pearly nodules. It has pearly nodules. Why it is not squamous cell carcinoma? Because it is irregular and crusted. ठीक है, squamous cell carcinoma is generally irregular and crusted. Why is it not malignant nevus? ठीक है, it is not malignant nevus because it is the less aggressive than melanoma. melanoma से less aggressive generally form होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? malignant nevus. ठीक है, आगे चलो देखते हैं. So the next question, a patient presents with the shown condition as in image. There is a history of burn around 3 years ago. What is the probable diagnosis? There is a history of a burn, है ना. Probable diagnosis क्या देखो photo, again the photo they have given. So you are seeing a wound here, that is ulcerated wound is here. So this ulcerated wound generally which is देखो irregular है ना, this is irregular. It has a raised edges. The surrounding has erythema also. The surrounding part of the generally this wound has erythema also. So this is nothing but malignant transformations in long standing scars or chronic wounds. दिस इज जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्न्स. अगर बर्न्स से जो वाउंड्स हुए तो उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हिस्ट्री भी है जनरली बर्न 3 years ago और उसके बाद जनरली देयर इज सम मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन. सो दिस इज नथिंग बट मार्जोलिन्स अल्सर. ठीक है, दिस इज मार्जोलिन्स अल्सर. ये डायबिटिक अल्सर क्यों नहीं है? बिकॉज नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज गिवन क्वेश्चन. बर्जर्स डिजीज क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ऑल्सो इन द क्वेश्चन. आगे देखो, क्रोनिक बर्न लीजन तो ऐसा होता नहीं, इतनी एग्रेसिव नहीं होती है. A patient present with multiple blisters on an erythematous base. Blisters on erythematous base along a dermatome on the trunk as shown in the image. कुछ बचता ही नहीं है जब आ जाता है this. जब तुम आ जाते हो सामने means along a dermatome, है ना. So along a dermatome if something is appearing like this, so our diagnosis is almost confirmed. ठीक है, so that is nothing but multiple blisters on erythematous base along a dermatome. So this is nothing but shingles. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? herpes zoster या फिर shingles. This is shingles or herpes zoster. So this is nothing but latent herpes zoster in the dorsal root ganglion. Drug of choice क्या हो जाएगा इसके लिए? acyclovir. ठीक है, acyclovir is the drug of choice. I myself have diagnosed this type of so many cases generally when I was in derma department. द टीचर हेल्प मी बट जनरली आई वॉज गुड टू डायग्नोज अबाउट दिस केसेस. क्योंकि एक डर्मेटोम में होता है पेन बहुत ज़्यादा होता है ना, देर विल बी पेन. इफ वी टॉक अबाउट द सेम लीजन्स विल बी देयर इन केस ऑफ व्हाट इज ए मिलियरिया. ठीक है, मिलियरिया जो हीट रैश होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट अभी हमारे उधर है ना, इंडिया में भी अभी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है दिल्ली वगैरह की तरफ. सो जनरली इन दीज समर सीजन जनरली ड्यू टू दैट सम रैशेज अपीयर्स ऑन द बॉडी जो इसकी तरह दिखते हैं. बट जनरली दोज मिलियरिया दे विल नॉट हैव जनरली द पेन एसोसिएटेड नहीं होगा. ठीक है, द पेन विल नॉट बी देयर. यहाँ पे क्या होता है कि पेन होता है जिस डर्मेटोम में. एक ही डर्मेटोम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ और द सेगमेंट व्हिच इज सप्लाइड बाय सिंगल नर्व. ठीक, और वहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा? देयर विल बी सो मच पेन. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट हर्पस जोस्टर जिसको हम सिंगल्स भी बोलते हैं. दिस इज जनरली कॉज्ड बाय
द सेम वायरस विच कॉजेज चिकन पॉक्स। और क्या होता है, वो वायरस रहता है, इट इज इनसाइड द बॉडी, एंड व्हेन द बॉडी इज लाइक इम्यूनो compromised or certain problems occur in the body, then this virus which is latent, it becomes active now, and now it will cause generally nothing but herpes zoster, that is called as shingles, ठीक है, that is called as shingles. Why it is not herpes simplex? Because in herpes simplex there will be fluid filled grouped vesicles. Why it is not molluscum contagiosum? Because molluscum contagiosum will have purely umbilicated, ठीक है, देखो ऐसा होगा है ना, and यहाँ पे umbilicated lesion होगा, ठीक है, umbilicated lesions will be there. चिकन पॉक्स बिकॉज ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल्स। चिकन पॉक्स में क्या था, बिकॉज देर विल बी ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पेटल्स, ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पेटल इज द clinical appearance of the rashes there. A 3-month child is presented to the hospital with the bright red birth mark as shown in the image. What will be the diagnosis? यहाँ पे diagnosis क्या हो जाएगा? Look, this is, you have to see this. So ये क्या है जनरली, एक सुपरफिशियल है ना, एक सुपरफिशियल है रेड रेज्ड लीजन अपर आईलिड पे दिख रहा है। यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन डर्मेटोलॉजी यू मस्ट नो हाउ टू डिस्क्राइब द लीजन, ठीक है। अगर आप डिस्क्राइब कर चुके लीजन को तो यू आर गुड टू गो विद द डायग्नोसिस इन 90% केसेज। आप वहीं पे, because in dermatology most of the things are generally clinical diagnosis, you don't need to repeat so many tests, क्योंकि क्लिनिकली देखने से ही पता चल जाता है कि ये डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। क्लिनिकली यू कैन डायग्नोज सुपरफिशियल रेड रेज्ड लीजन अपर आईलिड पे, इफ नॉट ट्रीटेड कैन कॉज एस्टिग्मेटिज्म और एम्ब्लाइपिया, सो इट विल बी जनरली द कॉम्प्लिकेशन। सो ये सुपरफिशियल रेड रेज्ड लीजन क्या है अपर आईलिड पे? दिस इज नथिंग बट बेनाइन और वाइटल ट्यूमर ऑफ द चाइल्ड, जनरली लेस देन 1 ईयर के बच्चे में होते हैं। और ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज प्रोप्रानोलॉल कैन बी यूज्ड है, ठीक है, प्रोप्रानोलॉल कैन बी यूज। देखो 1 बरस से नीचे 3 मंथ का हिस्ट्री है। चाइल्ड इज प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल द ब्राइट रेड बर्थ मार्क, ये बर्थ मार्क कोई है ना, दिस इज नथिंग बट बेनाइन और वाइटल ट्यूमर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कैपिलरी हेमेंजियोमा, ठीक है, बेनाइन और वाइटल ट्यूमर ऑफ चाइल्ड इन लेस देन 1 ईयर्स, जो आंख के ऊपर हो रहा है, दिस इज नथिंग बट कैपिलरी हेमेंजियोमा, ठीक है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको शायद ये वर्ड्स के बारे में बताया ना, सो लेट मी टेल अ लिटिल बिट, ठीक है। प्लेन वर्ड्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे जनरली, इट द कंडीशन विल बी वेरुका प्लेना। Filiform warts will be seen in the condition called as Verruca filiformis. Plantar wart will be seen in the condition called as Verruca plantaris or Myrmecia warts. Venereal warts will be generally seen in Condyloma acuminata. Just remember those two things, ठीक है। Massive Condyloma acuminata और Condyloma lata, दो थिंग याद रखना है। Massive warts will be in the case of Buschke-Lowenstein tumor and Condyloma lata will be in the case of Trypanosoma pallidum. You must remember this, ठीक है। So चलो let's move ahead. A 29-year-old female presents to the dermatological OPD as shown here. Dermatological OPD में she is presenting. So ये ऐसे ही देख के मुझे कुछ भी मैं अगर ना देखूँ तो generally I will be telling that this is nothing but this is the blackheads, ठीक है, ये blackheads and blackheads are nothing but comedones, ठीक है, comedones generally on the face and back of the chest, ठीक है, बैक पे जनरली, बैक पे और चेस्ट पे जनरली भी ये हो सकती है, एंड दिस इज नथिंग बट कोमेडोन्स, ठीक है, दिस आर कोमेडोन्स। व्हाई इट इज नॉट पस्ट्यूल्स? बिकॉज पस्ट्यूल्स आर पस फील्ड। व्हाई इट इज नॉट पैप्यूल्स? बिकॉज पैप्यूल्स आर रेज्ड सॉलिड लीजन लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। एब्सेस तो ये है ही नहीं कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट चलो। A 50-year-old presents to the dermatology OPD with the white patchy lesion as shown in the image here. What is the diagnosis? Okay, what is the diagnosis in this case? This white patchy lesion, ठीक है, ये silvery white patchy lesions, white silvery scales मैंने आपको पहले भी बोला था. So this is nothing but generally psoriasis. Of course, this is psoriasis. It is generally more common in the extensor area. It will show generally true Kovner along the line of scratching. It will show true Kovner's phenomenon. Kovner's phenomenon मतलब अगर यहाँ पे एक लीजन है और इसके आगे अगर आप स्क्रैच करते जाओ तो जहाँ जहाँ स्क्रैच करते जाओगे वहाँ वहाँ वो क्या होगा, वो लीजन फैलते जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज कोवनर्स फिनोमिनन, ठीक है, कोवनर्स फिनोमिनन. आगे देखो सेकेंडरी सिफिलिस क्यों नहीं है? बिकॉज जनरली इट हैज नॉन वेसिकोब्यूलर लीसन, ठीक है. मैक्यूलोपैपुलर ड्रग इरप्शंस बिकॉज इट विल बी मोस्टली ऑन द लिप्स एंड जेनिटलिया, नॉट ऑन दीज रीजन. आगे चलो. कोवनर्स फिनोमिनन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, ओके, द सेम थिंग. कोवनर्स फिनोमिनन मैंने बोला था ना आपको, मैं बाद में बताऊंगा कोवनर्स फिनोमिनन. सो दिस इज नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ द लीजन अलोंग द लाइन ऑफ द स्क्रैच, ठीक है. If the generally the lesion is appearing along the line of the scratch, this is nothing but Kovner's phenomenon. It is one of the most important tests that generally you see in our
डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉर्नर्स फिनोमिनन, ठीक है। कॉर्नर्स फिनोमिनन के बारे में बहुत जगह पे बातें होंगी। इट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, विटिलिगो में दिखती है ना। कॉर्नर फिनोमिनन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट हर्पिस, हर्पिस में नहीं दिखती है। सो जनरली इट इज नॉट सीन इन हर्पिस। देखो इट इज ऑल्सो सीन इन लाइकस निडिटस, पिटाइरियासिस रुब्रा पिलारिस एंड डायरियस डिजीज, ठीक है। आगे चलो, आइडेंटिफाई द वेरिएंट ऑफ सोरियासिस इन द इमेज बिलो। सोरियासिस के डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स होते हैं, उसमें से ये कौन सा वेरिएंट है। सो यू कैन सी, if we talk about this lesion, it is nothing but erythema in more than 75% of the body। ये देखो रेड पार्ट हम दिख रहे हैं। सो दिस इज erythema in more than the 75% of the body। so this is nothing but erythrodermic, generally एथ्रोडर्मिक सोरियासिस। आगे चलो, आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन। इफ यू सी दिस गिवन कंडीशन, एक ऊपर हमने देखा था ऐसा कंडीशन है ना, एक नीचे यहाँ पे ये देखो। सो दिस इज जनरली अ क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फूट व्हिच इज जनरली सीन इन माइसेटोमा, ठीक है। माइसेटोमा, दिस इज कॉल्ड एज माइसेटोमा फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुरा फुट बोलते हैं। और वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी for sure there। The cause of Madura foot will be generally Eumycetoma in 40% and filamentous bacteria, that is actinomycetoma in the 60% of the population। आगे देखो, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, दे कैन गिव द हिस्ट्री ऑफ अ फार्मर वर्किंग इन द साउथ रीजन, ठीक है। वहाँ वैसा हिस्ट्री दे सकते हैं। मोस्टली गोइंग टू द जनरली फार्म्स विथ वाटर्स वाला हिस्ट्री आएगा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 NF1 is a hereditary condition commonly associated with multiple cafe au lait spots on the skin which pattern of the inheritance is seen in neurofibromatosis 1। Okay, so let's see, this neurofibromatosis 1 is nothing but autosomal dominant, ठीक है। this neurofibromatosis 1 को क्या ही बोलते हैं, वॉन रेक्लिंग-हॉसन डिजीज, ठीक है। वॉन रेक्लिंग-हॉसन डिजीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉन रेक्लिंग-हॉसन डिजीज। यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, दैट इज फॉर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन वेयर देयर विल बी वन म्यूटेटेड कॉपी ऑफ NF1 जीन इन each cell, ठीक है। आगे चलो, all are seen in lichen planus। एक्चुअली हाउ टू डायग्नोज ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, क्वेश्चन से कैसे डायग्नोज करना है, आई हैव गिवन a very important generally note for this in the genetic chapter of pathology। if you go there and just watch that, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, कैसे हम उसको जनरली क्या करें, डिफरेंशिएट करें और कैसे पता चलेगा और क्या होती हैं ये चीज़ें। सो जनरली जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा सर दुखने वाला पोर्सन। सो यू कैन जस्ट गो इन द पैथोलॉजी प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे आप जेनेटिक्स वाला सर्च करो और जेनेटिक्स में जाके यू कैन सी वेरी सिंपली आई हैव जस्ट टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट, कैसे डायग्नोज करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने तो वहाँ पे बता रखी हैं। ऑल आर सीन इन लाइकन प्लानस एक्सेप्ट, लाइकन प्लानस के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। देखो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, सॉटूथ अकैंथोसिस, सिवेट बॉडीज और साइनिप्लेक्स, दे ऑल आर found। This Munro or microabscess or Kogo's microabscess, this is not generally found in lichen planus। This is found in pustular psoriasis where there will be collection of neutrophils in the stratum corneum। You must remember Munro's abscess or Kogo's abscess, generally this is nothing but collection of neutrophils। You must remember neutrophils here, neutrophils in the stratum corneum region, ठीक है। चलो आगे करते हैं। A patient presented with hypopigmented macules over back and upper trunk, QH mount shows spaghetti and meatball appearance, again done in the pathology so many times, ठीक है। तो वहीं से बन जा रहा है क्वेश्चन, shows spaghetti and meatball appearance, ठीक है। spaghetti and meatball appearance, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, brown and scaly generally मैक्यूल्स ऑन द ट्रंक एंड अपर आर्म्स। ये जनरली यहाँ पे ट्रंक और अपर आर्म्स पे जनरली यू कैन सी ब्राउन स्केली मैक्यूल्स। डायग्नोसिस इज पिटाइरियासिस वर्सिकोलर। द कॉज विल बी मैलेसेजिया फर, ठीक है। याद है, स्पैगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस, मैलेसेजिया फर। अगर हिस्टोपैथोलॉजी पे देखें तो जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शॉर्ट स्यूडो हाइफे एंड स्पोर्स, जिसको हम देखेंगे तो कैसा लगेगा, स्पैगेटी एंड मीटबॉल जैसा अपीयरेंस लगा। सो दिस इज मैलेसेजिया फर। Generally, the patient presents with lesion as shown in the image below. Later, patient also develops arthritis. What is the treatment? ये देखो, ये lesions दिख रहे हैं, है ना। ये lesions किसके देख रहे हैं आपको, देखो, सीवियर प्लेक सोरियासिस, दिस इज नथिंग बट सोरियासिस की जो सिल्वरी व्हाइट इमेजेस दिख रहे हैं हमको यहाँ पे देखो। सो दिस इज नथिंग बट जनरली डेवलप्ड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमने ऊपर भी किया था। इसमें अगर मैं बात करूँ मिथोट्रेक्सेट की, सो जनरली मिथोट्रेक्सेट विल बी जनरली यूज्ड फॉर मॉडरेट टू सीवियर सोरियासिस। सोरियाटिक जनरली इरिथ्रोडर्मा है ना, उसके बाद हम क्या देखते हैं, पस्ट्यूलर सोरियासिस, नेल सोरियासिस, पाल्मोप्लांटर सोरियासिस एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस। और ये क्या है, सोरियाटिक आर्थराइटिस की जनरली यहाँ पे पूरी की पूरी डायग्नोसिस बन रही है। सो मिथोट्रेक्सेट विल बी यूज्ड, नॉट साइक्लोफॉस्फामाइड, नॉट माइकोफिनोलेट मोफेटिल एंड नॉट रिटक्सिमैब, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मेरी लेक्चर्स आपने देखी है जनरली ऑन फार्माकोलॉजी, सो यू टेल मी रिटक्सिमैब इज यूज्ड फॉर व्हाट,
है ना. रिटक्सीमैब इज ड्रग ऑफ चॉइस इन विच कंडीशन, इफ यू हैव सीन माय लेक्चर्स. आइडेंटिफाई द कंडीशन, ठीक है, आइडेंटिफाई द कंडीशन. सो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये रेड रैसेस दिख रहे हैं. रेड रैसेस कहाँ पे दिख रहे हैं, आर्म्स पे, चिक पे और लेग्स पे. यहाँ पे फोटो उतना क्लियर है नहीं, बट जनरली चिक्स पे तो पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है. आर्म्स, चिक और लेग्स पे जनरली इट इज नथिंग बट slapped cheek generally disease. This is slapped cheek appearance. So this is generally caused by parvovirus B19 and this is nothing but the fifth day disease. ठीक है, slapped cheek appearance is seen in Ipedia में भी करेंगे हम, that is fifth day disease. So this is erythema infectiosum. ठीक है, erythema infectiosum. थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं, दैट इज रूबेला, जर्मन मीजल्स. फर्स्ट डिजीज इज मीजल्स, दैट इज रूबियोला. यू मस्ट रिमेंबर, फर्स्ट डिजीज मीजल्स, रूबियोला, ठीक है. थर्ड डिजीज रूबेला जो है जर्मन मीजल्स, ठीक है. सिक्स्थ डिजीज इज रोजियोला एंड एक्जेंथेमा सुबिटम. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग लीजन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. ये देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमको क्या दिख रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन दिख रहा है. सो दिस इज नथिंग बट लोकलाइज्ड विटिलिगो. ठीक है, लोकलाइज्ड विटिलिगो सेगमेंटल और डर्मेटोमल पैटर्न है. यहाँ पे एक डर्मेटोम में पूरा का पूरा हो रहा है. देयर विल बी यूनिलैटरल एंड असिमेट्रिकल, नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन, इट इज नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन, है ना. CD8 डोमिनेटेड इन्फिल्ट्रेट विल बी देयर व्हिच जनरली डिस्ट्रॉयज द melanocytes. So main condition in generally the vitiligo, it is an autoimmune condition और the melanocytes will be generally destroyed और उसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन हो जाते हैं एरिया पे. सो दिस इज नथिंग बट जनरली सेगमेंटल विटिलिगो. यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इसमें कुछ खास है नहीं. What could be the diagnosis for the image where exclamation mark is seen in trichoscopy. Trichoscopy is nothing but hair का जनरली, ठीक है. So hair में generally exclamation mark if you are seeing, that is nothing but our alopecia areata. सिंपल याद रखो बस इतना. इसके बारे में और बताता हूँ. लुक, what is exclamation mark and why is it appearing like exclamation mark. So then there will be short broken hair with proximal end narrower than the distal end. यही ना होता है, यही होता है ना जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क. सो जनरली द शॉर्ट ब्रोकन हेयर विथ प्रॉक्सिमल एंड नैरोअर देन द डिस्टल एंड एंड जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. दिस इज जनरली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और यहाँ पे देखो फेजेज ऑफ हेयर ग्रोथ, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, टेलोजेन इफ्लावियम, एनाजेन इफ्लावियम, ट्राइकोटिलोमेनिया. ट्राइकोटिलोमेनिया तो हम साइकेट्री में पढ़ेंगे. और द पर्सन विल हैव एन जनरली अर्ज टू ईट हिज हेयर. ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ट्राइकोफेजिया बोलते हैं. उसके बाद ट्राइको बेजुआर देखने को मिलता है. वो जो सब चीज़ें हम कहाँ करेंगे, विल बी डूइंग दैट इन साइकियाट्री. फॉर नाउ जस्ट सी द फेजेज ऑफ हेयर ग्रोथ. दिस इज द वेरी मच बेसिक ऑफ जनरल द हेयर ग्रोथ. जैसे हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन पढ़ते हैं ना इन आवर डर्मा सेशन, स्किन सेशन, वैसे ही जब हम हेयर में इंटर करते हैं तो हेयर में जो सबसे पहला चीज़ पढ़ाया जाता है दैट इज फेजेज ऑफ हेयर ग्रोथ. सो दिस फेजेज ऑफ हेयर ग्रोथ की मैं बात करूँ तो हेयर ग्रोज एट 0.4 mm पर डे एंड दिस इटसेल्फ हैज बीन अ क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जामिनेशन. हेयर साइकिल की मैं बात करूँ, एनाजिन फेज, कैटाजिन फेज और टीलोजिन फेज. 3 फेजेज विल बी देयर, एनाजेन, कैटाजेन एंड टेलोजिन. ठीक है, एनाजेन, कैटाजेन, टीलोजिन. एनाजेन फेज में क्या होता है, फेज ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रोथ. एनाजेन मीन्स समथिंग इज बीइंग फॉर्म्ड. सो दिस इज phase of activity and growth. Here the melanogenesis occurs, lasts for 2 to 6 years and most, that is 75 to 80% of hairs of our whole hairs are generally in this phase at a given point of time. कैटाजन फेज की मैं बात करूँ जनरली, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन एनाजेन एंड टेलोजन. सबसे पहले वाला एनाजेन होता है, उसके बाद कैटाजन और उसके बाद टेलोजन. सो जनरली एनाजेन और टेलोजन के बीच में कौन आ जाएगा, कैटाजन आ जाएगा. सो दिस इज जनरली हेयर द ग्रोथ विल बी स्टॉप्ड एंड द मोस्ट times they ask the question is this, the growth of the hair stops in which phase, that is catagen phase. Here there will be the appearance like club hair and lasts for 2 to 3 weeks. This phase lasts for 2 to 3 weeks. Telogen phase is nothing but the resting or degenerative phase. It lasts for 100 days. About 20 to 100 telogen hair are shed every day. This is the normal. ठीक है, this is normal 20 to 100 telogen. और आपने ऐसे भी कहीं, आजकल पॉडकास्ट का बहुत ज़माना चल रहा है. सो इफ़ यू हैव सीन पॉडकास्ट दे विल टेल, मोस्ट ऑफ दोज डर्मेटोलॉजिस्ट विल बी टेलिंग कि अबाउट 100 हेयर्स फॉल डेली. दिस इज नॉर्मल. ठीक है, और वो टेलोजन फेज में होते हैं और वो जनरली फॉल होते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट हेयर, टेलोजन इफ्लोवियम. देखो टेलोजन का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग फेज, अभी जस्ट हमने किया. व्हाट इज इफ्लोवियम, इफ्लोवियम इज अ कंडीशन. नॉर्मली 0 to 100 जो होता है वो चीज़ होता है, बट जनरली इफ दिस नॉर्मलसी एक्सीड्स मीन्स इंक्रीज इन डेली हेयर लॉस, more than 100 hair is being lost. So that is nothing but the effluvium. So this is the meaning of the effluvium word. So you must remember, resting phase में अगर ज़्यादा hair loss हो रहा है, so that is nothing but telogen effluvium. Generally hair exclamation mark, club like swelling at the root end will be seen.
एनाजेन इफ्लवियम में क्या होगा, एनाजेन इफ्लवियम में देयर विल बी एनाजेन, अगेन यू मस्ट रिमेंबर एनाजेन क्या है, और इफ्लवियम मतलब ज्यादा हेयर लॉस। सो एनाजेन फेज के हेयर ज्यादा लॉस हो रहे हैं, दैट इज डिफ्यूज हेयर लॉस ऑफ स्कार्प एंड अदर हेयर बियरिंग साइट्स इन द बॉडी। ट्राइकोटिलोमेनिया मैंने आपको बता चुका हूँ, सो दिस इज आवर एलोपेशिया एरिएटा। सो आंसर आपको ऐसे पता लगाना है। A 70-year-old patient develops the following lesion over the face for 2 years. What is the possible diagnosis? ये फेस पे ये लीजन है जनरली फॉर 2 years. So let's see. दिस इज व्हाट मैंने पहले भी आपसे बात किया जनरली निवस के बारे में। आई हैव टॉक्ड अबाउट यू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी मैंने बताया, और वहीं पे मैंने बताया था कि ऐसे टाइप के जो लीजन्स होते हैं जनरली लुक एरिया ऑफ स्किन एक्सपोज टू सन, ये जैसे कि फेस वगैरह होंगे वहाँ पे पिंक और फ्लेश कलर्ड पैप्यूल और नोड्यूल विथ सरफेस टेलेंजेक्टेसिया। लुक दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस जनरली इमेज। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है सो दिस इज नथिंग बट बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, दिस इज बेसल सेल कार्सिनोमा। सो लेट अस सी a little bit about basal cell carcinoma. तो most common cause will be generally UV radiation, ठीक है, UV radiation. Basal cell carcinoma, it is the commonest malignant tumor of skin in whites, not in black people. It is generally most common malignant tumor of skin in generally the whites. It arises from the basal cell layer of epidermis. Of course, that is why it is called as basal cell carcinoma. ठीक है, टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो there will be nodulo ulcerative type, ठीक है, one will be nodulo ulcerative type, that is also known as rodent ulcer, which itself has been a question. Rodent ulcer किसको बोलते हैं? That is nodulo ulcerative type of basal cell carcinoma. It is the most common type of BCC, that is nodulo ulcerative type. A small translucent papule often with telangiectasia which enlarges and ulcerates in the center. Edges are raised generally, rolled. Edges are rolled, pearly and beaded white. Edges are rolled, pearly and beaded white appearance will be there. Center has adherent crust. It is found on फेस। ये भी क्वेश्चन है नोड्यूलो अल्सरेटिव से, जो दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, एक ये और एक ये। Superficial basal cell carcinoma, it is slowly growing thread like edges found on the trunk and shoulder. यहाँ पे देखो स्क्लेरोसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरली मॉर्फिक बीसीसी बेसल सेल कार्सिनोमा। येलो वेक्सी इल डिफाइंड नोड्यूल्स क्लोजली resembling a scar, most difficult to diagnose and prone for recurrence found on the face. So generally the question, this can be your question, ठीक है। आगे देखो pigmented BCC. So pigmented BCC, that is pigmented basal cell carcinoma when any of the variants become pigmented. जितने भी यहाँ पे ऊपर हमने तीनों जो वेरिएंट पढ़े हैं, अगर उसमें पिगमेंटेशन आ जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा. Basal cell carcinoma is locally aggressive but metastasis does not occur. You must remember this point, very important. This metastasis does not occur in basal cell carcinoma. Predisposing factor will be UV rays, which is the most important, arsenic and xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum क्यों होता है? You must remember and you must write it in the comment. Just pause the video here and tell me the generally cause of xeroderma pigmentosum. कौन सा डिफेक्ट का होता है वहाँ पे? So this is nothing but basal cell carcinoma. यहाँ पे दिया हुआ है squamous cell carcinoma. Although I have told you about the squamous cell carcinoma, but let me give you one more brief summary about the squamous cell carcinoma from where the questions can be asked. It is a malignant tumor, है ना, indurated verrucous nodule or plaque which increases in size and ulcerates. Ulcer has irregular elevated everted margins like cauliflower. याद रखना, everted cauliflower. Occurs on sun exposed parts and bleeds easily. Major predisposing factor is generally UV rays here also. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अ यंग लेडी प्रेजेंट्स विथ फॉलोइंग लीजन इन द ओरल कैविटी. व्हाट इज द डायग्नोसिस? ये देखो ओरल कैविटी पे ऐसा कुछ लीजन है. सो दिस इज नथिंग बट ओरल लाइकन प्लानस. ठीक है, ओरल लाइकन प्लानस. क्यों? देखो इट इज ए स्वोलन ब्राइट रेड पैचेज, है ना, स्वोलन ब्राइट रेड पैचेज. व्हाइट लेसी, ये देखो ये व्हाइट 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 व्हाइट, ये सब लेसी रेज्ड पैचेज लाइक स्पाइडर वेब्स. स्पाइडर वेब्स की तरह दिख रहा है. दिस इज गोइंग टुवर्ड ओरल लाइकन प्लानस. ठीक है, ओरल लाइकन प्लानस. Auspit sign is seen in. So auspit sign is generally seen in if you have gone through your rapid revision notes. No need to define anything here. Just you remember one word. Auspit sign is seen in psoriasis vulgaris. आगे देखो. Ulcer with overhanging undermined edges in neck region as shown in the image given below. ये देखो in the given image below. Diagnosis क्या देखो. Ulcers with undermined edges. ये जनरली किस किस में देखी जाती है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल बी पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, सैंक्रोइड एंड क्यूटेनियस टीबी. यहाँ पे देखो कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ. मैलिग्नेंट सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, सिफिलिस, रिएक्टिव लिम्फेड नहीं. सो विल गो विथ ट्यूबरक्यूलर लिम्फ नोड जो कि क्यूटेनियस टीबी में देखी जाती है. नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं
ये जो 30 का ऑस्पिड साइन था, ये जनरली क्या होता है कि पंक्टेड ब्लीडिंग स्पॉट्स ऑन स्क्रैपिंग ऑफ द स्केल। अगर आप स्केल्स को अगर वहाँ से हटाओ, वहाँ से जनरली इफ यू जस्ट स्क्रैप दो स्केल्स, you will see punctate bleedings. It is also seen in Darier's disease and actinic keratosis also. That is auspicious sign. ठीक है, ठीक है, auspicious signs. वैसे वो एक वर्ड का था वो क्वेश्चन, इफ यू जस्ट रिमेंबर auspicious signs will be good to go with psoriasis vulgaris. First line treatment for generally acne comedones shown in the image. This is nothing but acne comedones, and these comedones are most common in generally the, if we talk about overall the comedones are most common in acne vulgaris. Grades of acne vulgaris, grade 1 will be generally predominantly comedones, ठीक है, grade 2 में predominantly papules will be there, grade 3 में there will be predominantly pustules, and grade 4 में nodules and cysts will be predominantly seen. ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसको जनरली? एडापेलिन, आइसोट्रेटिनोइन एंड टाजारोटीन कैन बी गिवन, मीन्स जनरली विटामिन ए से ट्रीट करते हैं। दिस विल जनरली नॉर्मलाइज फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग एपिडर्मल सेल टर्नओवर एंड इंक्रीज द डेहिसेंस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। सो दिस इज नथिंग बट टॉपिकल रेटिनॉइड्स विल बी यूज्ड। आगे चलो देखते हैं। A 20-year patient presented with the shown condition. The lesion increased in size and shape in last few weeks. Identify the condition in the shown image. यहाँ पे देखो ये है जनरली आपका। So this is nothing but a mole type of appearance. So mole which is having generally asymmetric lesion, blur anterior edge, multiple color, diameter greater than 6 mm, evolution that is change in shape, size and color. So this generally goes towards malignant melanoma. So this is going towards malignant melanoma. अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो ब्रेस्लो क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन ड्यूरेटेड लीजन्स विथ जनरली इवर्टेड मार्जिन्स एंड दिस इज स्लो ग्रोइंग की अगर मैं बात करूँ सो दैट विल बी जनरली एससीसी में अभी हमको जाए, बट यू मस्ट रिमेंबर, ये इतना याद रखो कि जनरली दिस ऑल थिंग्स विच आर इफ इट इज सीन दैट इज नथिंग बट मैलिग्नेंट मेलानोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात हमने पहले भी कर चुकी है। सो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एरिसिपेलाज। सो ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरली कॉजिंग एरिसिपेलाज ये क्या होंगे जनरली? दिस इज नथिंग बट सुपरफिशियल स्प्रेडिंग पायोडर्मा। एरिसिपेलाज की अगर मैं बात करूँ सो देयर द मेन कॉजेटिव एजेंट विल बी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। क्यूटेनियस हॉर्न एज शोन इन द इमेज, क्यूटेनियस हॉर्न यहाँ पे देखो, ये क्यूटेनियस हॉर्न एज शोन इन द इमेज इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग स्किन कैंसर, ठीक है, फॉलोइंग स्किन एसोसिएटेड विद एससीसी, एक्टेनिक केराटोसिस, एपिडर्मल निबस, वेरुका वल्गारिस, सिबोरिक केराटोसिस। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज नथिंग बट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, उसमें से कौन सा दिख रहा है यहाँ पे उसको आप जनरली क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो आंसर के लिए। आगे देखो, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रेजेंट्स विद अल्सर ऑन anterior leg as shown in the image. Diagnosis, ये देखो, this is the ulcer, so this is generally suffering from ulcerative colitis. So you must remember कि ulcerative colitis, Crohn disease वगैरह से जनरली कौन से अल्सर जनरली ये क्या है? इरेगुलर अल्सर है, अंडरमाइंड एजेज है, बायोलेसियस बॉर्डर है। सो दिस इज नथिंग बट if we talk about the associations, ulcerative colitis generally more than Crohn's disease, that is arthritis है ना, hematological malignancy, monoclonal and generally gammopathies, these all things will be there. So ये क्या है? pyoderma gangrenosum, ठीक है, दिस इज पायोडर्मल गैंग्रीनोसम। और ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल यूज ओरल स्टीरॉइड्स। आगे चलो देखते हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कंडीशन। सो इस कंडीशन में द कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज देयर इज नथिंग बट, ये अगर आप देखो यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट नॉन बुलस इम्पेटिगो, ठीक है, नॉन बुलस इम्पेटिगो, गोल्डन येलो क्रस्ट यहाँ पे अपीयरेंस हो रहा है। दिस इज द मेजर थिंग यू मस्ट रिमेंबर, है ना। कॉज क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और जनरली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। यहाँ पे देखो ये क्या है? दिस नॉन बुलस इम्पेटिगो में सेवरल लीजन्स कोएलेज टू फॉर्म सिंगल polycyclic plaque spreads peripherally without central healing, so this is nothing but post streptococcal glomerulophytis, ठीक है, post streptococcal glomerulonephritis। A tourist guide in Mount Everest after one of his trips developed blisters on the feet। ये देखो, ये blisters on the feet you see, you must have seen this if you have been in the cold regions, ठीक है। So this is nothing but this is frost bite, ठीक है। फर्स्ट बाइट में जनरली ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? वेसोडाइलेटर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो जाएगा? वासोकंस्ट्रिक्टर्स शुड नॉट बी यूज, क्योंकि ऑलरेडी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है, ठीक है। सो वी मस्ट यूज वेसोडाइलेटर्स देयर ट्रीटमेंट, है ना, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा। सो फॉर दिस which is not useful for his treatment। So यहाँ पे देखो, hyperbaric oxygen, of course it will increase oxygen to your tissue, so we can use, decrease edema and inflammation। वैसे जनरली अगर आप माउंट एवरेस्ट वगैरह पर चढ़ाई कर रहे हो, हाइकर्स हो मेनली, सो तो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट स्टेज इन दैट यू मस्ट नॉट डू टू मच ऑफ जनरली एस्केलेशन इन वन डे। बहुत ज़्यादा ऊपर एक दिन में नहीं चढ़ना, अगर चढ़ गए हो तो नीचे आ जाओ, अगर ये सिम्टम्स आने लगे जस्ट कम डाउन, सबसे बेहतर होगा, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो करना है।
सो जनरली अगर नेक्स्ट थिंग है दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन जनरली क्या है, एक थ्रोम्बोक्सिन A2 है इनहिबिटर, जो जनरली पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड प्लेटलेट एग्रीगेटर है ना। यहाँ पे देखो फिनाइल एफ्रिन। फिनाइल एफ्रिन क्या करता है, जनरली वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट। एंड पेंटॉक्सीफाइलिन, पेंटॉक्सीफाइलिन जनरली मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव इंप्रूव्स ब्लड फ्लो बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। तो ऑफकोर्स ये भी यूज करता है। एस्पिरिन यूज फॉर कैन बी यूज फॉर पेन्स, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं आपको सर्टन कंडीशंस, बट दिस फिनाइल एफ्रिन कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट इज अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट विच इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, which is a vasoconstrictor which cannot be used in this condition. Patient presents with history of severe sunburn after a generally है ना, after only a few minutes in the sun, freckling in sun exposed areas, dry skin and changes in skin pigmentation. Diagnosis क्या होगा ये देखो, this is nothing but xeroderma pigmentosum. Hallmark photosensitivity DNA repair defect है ये, this is xeroderma pigmentosum. It is a nucleotide excision repair defect which I have already told you in our द फर्स्ट थिंग दैट आई अपलोडेड ऑन चैनल दैट इज बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट। और एक और चीज, व्हाट इज ब्लूम सिंड्रोम कॉज्ड बाय, कौन सा डिफेक्ट था वहाँ पर, जस्ट यू टेल मी अबाउट ब्लूम सिंड्रोम। ये देखो ब्लूम सिंड्रोम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो पैथोजेनेसिस की मैं बात करूँ तो इफ देयर इज एक्सपोजर टू यूवी रेज, डीएनए डैमेज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेलेंट लिंकेज एंड एडजेसेंट pyrimidine, दिस इज द वे हाउ द DNA is being damaged. But if our body is generally, our body has this counter current mechanism, जिसमें जनरली क्या होता है कि जो DNA डैमेज होता है उसको तुरंत रिपेयर कर लिया जाता है। नॉर्मली इट इज रिपेयर्ड बाय एक्सीजन एंड रिपेयर, है ना। इफ देयर इज डिफेक्टिव एक्सीजन एंड रिपेयर डिफेक्ट दैट विल लीड टू जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो दिस इज जनरली द पैथोजेनेसिस ऑफ जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये दो जगह पे आपको पूछी जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड अगेन इन द स्किन, ठीक है, डर्मा। सो क्लिनिकल फीचर्स, फोटोसेंसिटिविटी, मल्टीपल फ्रेकल्स, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, जेरोडर्मा। जेरोडर्मा मीन्स ड्राई स्किन, इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, मोस्ट पेशेंट्स डाई बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर्स, दिस इज वेरी मच लीथल, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। A child presents with sores in the mouth and rash on the hands and feet as shown in the image below. What is the causative organism for it? ये देखो यहाँ पे ऐसे रैसेस दिख रहे हैं इसको, है ना, ऐसे रैसेस दिख रहे हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, जनरली देखो कहाँ पे बता रहा है, सोर्स इन माउथ, रैश ऑन द हैंड्स एंड फीट। हैंड, फुट, माउथ, तीन जगह पे। सो दिस इज हैंड, फुट, माउथ डिजीज। ऑफ कोर्स विल बी studying about this in more detail in our pedia lectures also. HFMD, hand foot mouth disease, it is generally caused by पिकोरना वायरस, जो कि हमने माइक्रोबायो में भी किया हुआ है, पिकोरना वायरस दैट इज कॉक्सैकी A16 और इंटेरोवायरस 71। आगे देखो, सो ये कॉक्सैकी ए वायरस A16, ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ फीवर एंड प्लियोमॉर्फिक रैश एज शोन इन द इमेज। डायग्नोसिस, ये देखो प्लियोमॉर्फिक रैश है, ये देखो कैसा दिख रहा है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, ठीक है, नीचे देखो रोज के पेटल पे ये ड्यू जैसा एक व्हाइट सा क्या दिख रहा है, जनरल लीजन दिख रहा है। दिस इज जनरली पैप्यूल व्हिच गोज टू वेसिकल एंड देन इट कैन कन्वर्ट टू पस्ट्यूल आल्सो। सो दिस इज नथिंग बट ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। दिस इज जनरली लो ग्रेड फीवर भी इसमें आता है, मेलेज भी आता है। ये क्या है, चिकन पॉक्स है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। A 40-year-old female comes with complaint of pain in her fingernail. On examination, red nail fold with pus discharge. ये क्या, red nail pus discharge, so that is generally bacterial infection और fungal infection की तरह दिखा रहा है। So generally the most likely diagnosis is nothing but paronychia. The paronychia क्या होता है, जनरली देखो बैक्टर और फंगल इन्फेक्शन where nail and skin meet, यहाँ पे नेल और स्किन मीट करता है ना इस रीजन पे, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड एज पैरोनाइकिया। एक्यूट जनरली स्टेफ ऑरियस की वजह से, एंड क्रोनिक विल बी ड्यू टू द कैंडाइटा दैट इज नथिंग बट जनरली फंगस, ठीक है। आगे देखो, which sign is shown in the given picture, ये जो दिखा रहा है सामने पिक्चर, ठीक है, इसमें कौन सा दिखा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट देखो जो स्क्रैच है, स्क्रैच में जनरली अलोंग द स्क्रैच देयर इज स्प्रेडिंग ऑफ द जनरली लीजन्स। सो दिस इज नथिंग बट कॉर्नर्स फिनोमिनन। सो दिस इज कॉर्नर्स फिनोमिनन। और कॉर्नर्स फिनोमिनन कहाँ कहाँ दिखते हैं, ट्रू कॉर्नर देखो, ट्रू कॉर्नर्स कहाँ दिखते हैं, सोरियासिस, विटिलिगो, लाइकन प्लेनस, कापोसी सार्कोमा, डेरियर्स डिजीज में। फॉल्स कॉर्नर विल बी सीन इन केस ऑफ मोलस्कम कॉन्टेजियोसम वायरल वॉट्स के केस में, ठीक है, ड्यू टू जनरली ऑटो। ये क्यों होता है, जनरली ड्यू टू ऑटो इनिकुलेशन, अगर आप ऐसे स्क्रैच करो तो आगे वाले में भी जाते चले जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट जनरली ड्यू टू ऑटो इनिकुलेशन एंड इट इज सीन इन इन्फेक्शंस एंड एक्जेमेटस लीजन्स, ठीक है, एक्जेमेटस लीजन्स। अभी देखो ऑस्पिड साइंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज पिन पॉइंट ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ अ स्केल फ्रॉम द सोरियाटिक प्लेग, क्लासिकली सीन इन सोरियासिस वल्गारिस, ठीक है। डर्मेटोग्राफिज्म क्या है या फिर डर्मोग्राफिज्म क्या है, डर्मोग्राफिज्म इज
स्ट्रोकिंग, डर्मो मीन्स स्किन और ग्राफिज्म मीन्स लिखना कुछ। सो स्ट्रोकिंग ऑफ द स्किन कॉजेज इट टू व्हील ऑन द लाइन ऑफ द स्ट्रोक सीन इन जनरली अट्रिकेरिया। ठीक है, अट्रिकेरिया में दिखा जाता है। निकोल्स्की साइन क्या होता है? निकोल्स्की साइन इज स्लाइट रबिंग और प्रेशर ऑन स्किन कॉजेज द एपिडर्मिस टू शियर ऑफ, इंडिकेटिंग अ लॉस ऑफ कोहेजन बिटवीन स्किन सेल्स। एग्जाम्पल इन पेम्फिगस वल्गारिस। पेम्फिगस वल्गारिस में आप ये निकोल्स्की साइन देख सकते हो। A patient who was on anticonvulsant medication presented with lesion as shown in the given image. What could be the diagnosis? क्या हो सकता है डायग्नोसिस? ये देखो लीजन्स देख रहे हो आप जनरली, और ड्रग की हिस्ट्री भी दी हुई है, दैट इज एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन पे। सो दिस इज जनरली रिकरेंट वेल डिफाइंड लीजन्स ऑन द सेम प्लेस व्हेन द ड्रग इज टेकन। वो ड्रग लेने के बाद एक ही जगह पे वही सेम तरह की जनरली आ रही है। सो दिस इज नथिंग बट जनरली फिक्स्ड ड्रग इरप्शन 30 मिनट्स टू 8 आवर आफ्टर टेकिंग द ड्रग इफ इट इज अपीयरिंग। चलो आगे करते हैं। अ पेशेंट है ना, पेशेंट प्रेजेंटेड विथ हाइपोपिगमेंटेड रेस विथ सेटेलाइट लीजन्स एज शोन इन द इमेज। सेटेलाइट लीजन याद रखो, सेटेलाइट लीजन क्या है? सो लुक, ये जो जनरली है, सो यहाँ पे देखो, नॉट इनफ इम्यूनिटी टू कंट्रोल द लीजन, एज अ रिजल्ट न्यू लीजन्स अराउंड द सेंट्रल लीजन विल बी इरप्टिंग। और उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? सेटेलाइट लीजन बोलते हैं। सेटेलाइट लीजन इज द क्लस्टर ऑफ लीजन्स अराउंड द सेंट्रल लीजन। एक सेंट्रल लीजन के अराउंड में जनरली क्लस्टर्स ऑफ रीजन विल बी, clusters of lesions will be appearing. This is satellite lesion and this is generally seen in the leprosy. Which leprosy? That is BT leprosy. ठीक है, that is borderline tuberculoid leprosy. LL यानी क्या होता है? लेप्रोमेटस। BL मानी कि borderline lepromatous and generally टीटी यानी कि ट्यूबरक्लोइड, और बीटी मतलब बॉर्डरलाइन जनरली ट्यूबरक्लोइड, बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लोइड। सो इफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेप्रोसी दे हैव गिवन हियर। ये देखो टीएल, बीटी, बीएल, एलएल और पीएनएल सब आप पढ़ लेना है ना, मैं इस सबको नहीं मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ये देखो एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, यहाँ से एम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या पूछा? लियोनिन फेसिस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ईयरलोब्स, आईब्रोज, पेडल एडिमा, टाइप 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी जनरली इन एलएल। ठीक है, दैट विल बी जनरली इन एलएल। यहाँ पे हमारा जनरली क्या बीटी था, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस। सो लेट मी टेल अबाउट बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस। ये देखो लार्ज ओवल और राउंड पैच विथ रेस्ड बॉर्डर, ये देखा हमने अभी। यहाँ पे देखो ओवल और राउंड पैच, रेस्ड बॉर्डर है ना। आगे चलो, 1 to 5 ओफन एज सेटेलाइट लीजन नियर अ लार्ज लीजन। समझ में आ रहा है बात? सो दिस इज व्हाट जनरली आस्क्ड इन वेरी मच पास्ट, दैट इज ऑल इंडिया के एग्जाम्स 99 में और एम्स के एग्जाम 94 में भी पूछा गया था। ठीक है, लोकल नर्व थिकेंड, डेफिनिट सेंसरी लॉस ऑन पैच है ना, on patch, and it is generally type 1 reaction। ठीक है, it is type 1 reaction। चलो, आइडेंटिफाई द कंडीशंस इन दिस इमेज। इस इमेज में आप देखो क्या है, ये आईब्रोज खत्म हो चुके हैं, लॉस ऑफ आईब्रोज, दैट इज कॉल्ड एज मेडारोसिस, जो कि लेटरल 1/3 के आईब्रोज खत्म हो चुके हैं। लियोनिन फेसिस, सो दिस इज जनरली लियोनिन फेसिस। किस में देखा जाता है? आप लोग फिर लियोनिन फेसिस का फिर दूसरा मत निकालना मतलब। ठीक है, सो दिस इज लियोनिन फेसिस, नॉट लियोनी फेसिस। ठीक है, लियोनिन फेसिस विच इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ईयरलोब्स, आईब्रोज, पीडल एडिमा, दैट इज टाइप 2 ENL रिएक्शन है, एंड दैट इज जनरली इन द LL, दैट इज ए स्मॉल erythematous patches and macules that is seen in LL type of leprosy. So this is our lepromatous leprosy. A truck driver with history of painless lesion on penis undergoing treatment presents with rashes as shown in the image। पता नहीं क्यों ट्रक ड्राइवर्स को जनरली टारगेट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट STDs। ठीक है, दिस इज STDs। ट्रक ड्राइवर दिखा रहा है, सो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, STDs विल बी देयर। सो एक्चुअली पाल्मर सिफिलिट्स, ठीक है, पाल्मर सिफिलिट्स आर देयर। बुस्के ओलिंड्रॉफ sign which is generally pain on pinching, pain on pinching, that is nothing but secondary syphilis। After 2 to 12 weeks of the syphilis there will be low fever and malaise also present। आगे चलो, आइडेंटिफाई द इमेजेस शोन बिलो। आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो। यहाँ पे ये इमेज जो दिख रहा है इसमें देखो मल्टीपल पस हेड्स, ये जनरली मल्टीपल पस हेड्स यहाँ पे दिख रहा है हमको। सो दिस इज नथिंग बट स्टाफ की इन्फेक्शन हो सकती है। दिस इज नथिंग बट कार्बंकल्स, नेटवर्क ऑफ द फरंकल्स कनेक्टेड बाय साइनस ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज कार्बंकल। सेलुलाइटिस में क्या होता है? पेनफुल एरिथेमेटस जनरली इन्फेक्शन। ठीक है, पेनफुल एरिथेमेटस इन्फेक्शन ऑफ डीप स्किन विथ पुअरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स। अगर मैं बात करूँ एरिसेपेलाज की, सो दिस इज फायरी रेड पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द सुपरफिशियल स्किन विथ शार्पली डिमार्केटेड बॉर्डर्स, जो ऊपर भी हमने जिसके बारे में बात किया था। आगे चलिए देखते हैं। अ फार्मर प्रेजेंटेड टू ओपीडी विथ स्वेलिंग ओवर हिज पाम एज शोन इन द फोटो। फ्यू मंथ्स बैक ही गॉट इंजर्ड विथ थॉर्न। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली? ये देखो, ये दिस इज नथिंग बट जनरली इम्प्लांटेशन डर्मोइड। ये क्या है? इम्प्लांटेशन डर्मोइड है, मोस्ट कॉमनली सीन इन वुमन एंड फार्मर्स।
टेलर हु अंडरगो रिपीटेड इंजरी अगर जो टेलर्स जो कपड़े स्टिच करते हैं उनको भी हो सकता है ये रिपीटेड इंजरी। एपिडर्मल सेल्स डिपोजिशन ड्यू टू द मल्टीपल इंजरी, और वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इम्प्लांटेशन डर्मोइड। सिक्विस्ट्रेशन डर्मोइड क्या होता है, नियर हेड एंड नेक होता है, इसलिए ये वो नहीं है। इम्प्लांटेशन डर्मोइड फिंगर, पाम, सोलर, फुट और प्लस फार्मर या फिर वुमेन की जनरली हिस्ट्री होगी, हु जनरली वर्क्स एज अ टेलर। ठीक है, आगे देखो टेराटोमेटोइड जनरली इट विल जनरली सीन ऑन ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, एमिलोब्लास्टोमा की तो बात ही नहीं बनती यहाँ पे। Which nail finding is characteristic for psoriasis vulgaris shown in the image? Psoriasis vulgaris generally which nail finding, ये nail finding क्या है, देखो psoriasis में क्या होता है, pitting होता है, subungual hyperkeratosis, splinter hemorrhage, onycholysis, separation of nail from nail bed, वही तो हो रहा है, separation of nail from the nail bed. So this is nothing but onycholysis. ठीक है, this is onycholysis. So this is for this video. I'll meet you in the next part again.